देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। Hello and welcome to an India Today special broadcast from Adipuri, Ayodhya. I'm Gaurav Sawant. This is an ancient city, a holy city that's being decked up for Deepavali with a difference. Ayodhya decked up for a grand Deepotsav, the festival of lights. From 51,000 diyas 5 years ago, the target is more than 9 lakh diyas this Diwali. इस बार 9 लाख दीपक केवल यहीं पर प्रज्वलित होंगे। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं राम जी की पेड़ी, यहाँ पे 9 लाख दीपक इस बार प्रज्वलित होंगे। Water from Kabul river mixed with Ganga Jal for a special Jalabhishek of Sri Ram. और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, माता केकई उसी अफगानिस्तान से थी। क्या माता केकई नहीं होती तो क्या हम राम राज्य की बात कर पाते? Several political leaders head to Ayodhya ahead of Diwali. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal gears up for a special Diwali puja with a replica of the Sri Ram temple. Ahead of Uttar Pradesh elections, we bring you Ayodhya's Mahadipotsav. We're at Ram Ki Pedi on the banks of river Saryu, very close to the Sri Ram temple. And there are grand plans this year to have 9 lakh diyas lit up on Deepavali, a grand Deepotsav. It started 5 years ago with 51,000 diyas and kept increasing each year. Kumar Abhishek gets us more on the big story. Ayodhya, the birthplace of Maryada Purushottam Sri Ram, is decked up for Diwali. At the Ram Ki Pedi, 900,000 or 9 lakh diyas will light up Ayodhya this Deepavali. 5 diyas were brought in from every village across Uttar Pradesh, and the administration was tasked to ensure that more than 12 lakh diyas light up across Ayodhya in an effort to set a new benchmark. इस बार 9 लाख दीपक केवल यहीं पर प्रज्वलित होंगे। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं राम जी की पेड़ी, यहाँ पे 9 लाख दीपक इस बार प्रज्वलित होंगे। When Yogi Adityanath took over as Chief Minister in 2017, for the first time, 51,000 diyas were lit up on the banks of river Saryu at Ram Ki Pedi. Each year, the number went up, with close to 3.5 lakh diyas in 2018, 4 lakh diyas in 2019, and 6.6 lakh diyas in 2020. This year, 9 lakh diyas will light up at the Ghats and another 3 lakh diyas across Ayodhya to mark the celebrations of 9 lakh homes allotted to beneficiaries of Prime Minister and Chief Minister's Awas Yojana or housing scheme. Water from Kabul river was sent by a woman devotee from Afghanistan. It was mixed with Ganga Jal for a Jalabhishek of Lord Ram at the temple in Ayodhya. Yogi Adityanath at Panchayat Aaj Tak spoke of the significance of the ceremony. और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, माता केकई उसी अफगानिस्तान से थे। भगवान राम ने माता केकई के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। क्या माता केकई नहीं होती तो क्या हम राम राज्य की बात कर पाते? It is not just about lighting up 9 lakh diyas, it is also about the paintings, the entire life journey of Lord Rama, which the students of various colleges of Ayodhya have tried to show in this particular majestic Ram Ki Pedi. There are grand plans for a laser show, sound and light show, and the use of drones in 3D projection of the Ramayana. 500 drones will draw various events from Ramayana on the Ayodhya skyline. 3D holographic shows, 3D projection mapping, and laser shows on the banks of river Saryu will also make this Diwali special. This is the first time that festivities have been scaled up to this level. And the administration has sought the assistance of over 12,000 volunteers to light the diyas. The diya makers are also excited about this Diwali. कुल 2.5 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें लगभग 40 घर कुम्हार हैं यहाँ पे,
सबको 5-5 हज़ार दे दिया हूँ। यहाँ पे 12,000 हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो स्कूल और कॉलेजों के हैं। यहाँ जो कार्यक्रम का जो मेन स्वरूप है वो हमारा साकेत कॉलेज से 13 झांकियाँ निकलेगी जो राम कथा का चित्रण करेंगी और वहाँ झांकियों को रूट होगा और वो अपने निर्धारित रूट से राम कथा पार्क तक आएगी। The effort, according to the people of the historic religious center, is to ensure Ayodhya's historic and cultural glory is not only revived but also taken to greater heights. Bureau Report, India Today. As the battle for 2022 hots up, Ayodhya is at the center of the political debate. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has visited Ayodhya multiple times, but this time, perhaps, these elections are with a difference. Whether it's the Aam Aadmi Party or the Samajwadi Party or the Bahujan Samaj Party, multiple parties are making not just the temple run, but also coming to Ayodhya and making a point about the Sri Ram temple. Does the road to Lucknow go via Ayodhya? It certainly seems so in pole-bound Uttar Pradesh. With an eye on the crucial upcoming elections, political parties are rushing to the hallowed ground of Ayodhya. Lord Ram's birthplace has become the new arena to get political mileage. From Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to the Aam Aadmi Party's Arvind Kejriwal to the BSP's Satish Chandra Mishra, all are seeking Ram's blessings. Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal has announced a free Ayodhya pilgrimage if elected to power. The party had earlier taken out a Tiranga Yatra in many parts of the state. प्रभु से मांगे एक तो अपने देश की लोगों के लिए सुख शांति, देश का विकास, और दूसरा कि प्रभु मुझे क्षमता दे और प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को यहाँ पे लाके उनके दर्शन करा सकूं। Launching a statewide Brahmin conference in Ayodhya on July the 23rd, Bahujan Samaj Party National General Secretary and close Mayawati aide Satish Chandra Mishra said the BJP had been raising funds for the construction of the Ram temple for the last 20 years but has not been able to build it. जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहाँ पर भव्य मंदिर जो बनने का काम। UP Chief Minister Yogi Adityanath on his part has described the Grand Ram Temple under construction as an opportunity for 135 crore Indians to hold their heads high before the world. जो लोग कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, आज उन्होंने हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ते हुए उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि राम तो हमारे भी है। तो हमने कहा कब? हमने कहा कि तुम्हारे नहीं है, हम तो पहले से इस बात को कहते थे। तुम और तुम्हारे पूर्वज गलत थे, माफी मांगो देश से। The Samajwadi Party too launched a campaign on September 3rd from Ayodhya. सहयोग कीजिए और आपसी की आजादी की जंग जीतिए। आपका जीत के पोलिंग के दिन आप सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिलाना, यही मैं प्रार्थना करने आया हूँ। Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra is yet to visit Ayodhya but offered prayers at the Kashi Vishwanath Temple and Durga Temple in Varanasi. The Congress General Secretary also recited 2 shlokas in Sanskrit and urged the audiences to chant Jai Mata Di at her Varanasi rally. सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे
Political pundits see the temple runs by opposition leaders as a bid to breach the BJP's Hindutva vote bank ahead of the crucial Uttar Pradesh election. Bureau Report, India Today. At Panchayat Aaj Tak here at Ayodhya, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath spoke at length about the significance of Maryada Purushottam Shri Ram and the temple at Ayodhya. He also spoke about taking action against those who praised Pakistan. He didn't mince his words. जहां हम बैठे हैं आज इस अयोध्या में, अब हर कोई लपक रहा है। अब सभी को लग रहा है कि यहीं से राम नाम की राजनीति है, जीत सके तो जीत। और आप भी पीछे नहीं है सर, आप भी दिवाली यहाँ पर कराते हैं, सब आके जय जयकार करते हैं। योगी जी ने देखिए इतनी भव्य दिवाली करा दी, तो यहाँ से लोगों का एक विश्वास, तो प्रभु राम को जीवंत करके हर पार्टी रखना चाहती है। अरविंद केजरीवाल भी आए, प्रियंका वाड्रा भी हर जगह जा रही हैं, तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन आप उस रेस में सबसे आगे रह रहे हैं इस दिवाली के जरिए। गलत है क्या ये? देखिए, हमने राम का नाम गरीबों के काम के साथ जोड़ करके आगे रखा है। राम का नाम हमारे लिए एक दीन दुखी की सेवा का माध्यम है, सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं। विपक्ष लेकिन यह कहता है कि राम का नाम भुनाने में आपको लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, वोट मिलते हैं, क्योंकि आप विपक्ष की बात करते हैं तो कहते हैं राम भक्त तो हम भी हैं, हमारे पिताजी तो हनुमान जी के, बजरंगबली के बचपन से भक्त रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बजरंगबली की शरण में आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज करें, मंदिर में भी करें, हनुमानगढ़ी में आकर के भी करें, और किसी चौराहे पर खड़े होकर सामूहिक रूप से पूरे खानदान के साथ करें। कम से कम पुरानी आत्माओं को इसी बहाने शांति मिल जाएगी। किनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी? जिन लोगों ने राम का विरोध किया था। चलिए अब जरा तड़पती हुई आत्माओं को शांति मिलना बहुत आवश्यक है। काबुल नदी के जल की जो आप बात कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, पहली बात। और दूसरी बात, आपके लिए राम राज्य की कल्पना क्या है? क्या है राम राज्य, और उसमें आपको पिछले 5 वर्षों में कितनी सफलता मिली है? देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समय हम सब का एक प्रयास था कि भारत के सभी तीर्थों का और सभी पवित्र नदियों का, सभी समुद्रों का, 7 समुद्रों का भी जल यहाँ पर आए। वो लहाया भी गया था। दुनिया से अलग अलग जगहों से जहाँ भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी वहाँ की पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थों का जल भेजा था। लेकिन वह काबुल के अंदर, और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, माता कैकेयी उसी अफगानिस्तान से थे। भगवान राम ने माता कैकेयी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। आप सोचिए, अगर माता कैकेयी नहीं होती तो क्या राम राम हो पाते? हम तनिक भावावेश से ऊपर उठ करके सोचें, क्या माता कैकेयी नहीं होती तो क्या हम राम राज्य की बात कर पाते? एक इस देश से, दूसरा आतंक के साये में रह रही बहनें, बेटियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति कितनी आस्थावान हैं। वे भले ही वहां पे आतंक के साये में रह रही हैं, लेकिन प्रभु राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट आस्था है। उस अटूट आस्था को सम्मान देने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं अयोध्या भेजा कि आप एक बार इनके द्वारा अर्पित के इस भेजे गए इस जल को श्री राम जन्मभूमि पे अवश्य अर्पित करें, और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। आपने दूसरा जो बात आपने कही कि राम राज्य हमारे लिए, राम राज्य की अवधारणा, याद करिए पहले दीपोत्सव में मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा राम राज्य हमारे लिए कोई धार्मिक राज्य नहीं, कोई मजहबी राज्य नहीं, कोई एक वर्ग विशेष का राज्य का प्रतीक नहीं है। हमारे लिए राम राज्य हर गरीब को मकान दिला देना है,
सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करा देना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा देना, हर गरीब के घर में सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसके घर में बिजली की रोशनी पहुंचा देना, हर माता की जो रोजमर्रा की आवश्यकता थी, ईंधन की आवश्यकता है, उसके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा देना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे देना। इन सामान्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं के साथ साथ राम राज्य हमारे लिए आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्रता से एक आम नागरिक को मुक्त करने का एक माध्यम है। और हम लोगों ने राम राज्य की इस अवधारणा को उसी रूप में लिया भी है। अब तो आप पटाखे छोड़ने पर भी सर देशद्रोह लगा दे रहे हो। नहीं, हम पटाखे छोड़ने पर कोई देशद्रोह नहीं लगा रहे हैं। लोग हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं। नहीं, क्रिकेट पर सर मैं आ रही थी, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने मैंने फिर कहा ना, कानून को हाथ में बंद लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रति उन्हें हर हाल में अपने सम्मान को व्यक्त भी करना पड़ेगा। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। और हम अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे कि भारत में रह करके, भारत की धरती का अन्न खा करके और पाकिस्तान का गुण गाओगे तो फिर उसी लायक बना देंगे फिर जिस लायक भारतीय सेना उन लोगों को बनाती है। और ये बहुत साफ है कि भारत में रहकर पाकिस्तान की टीम का कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन ये केवल पाकिस्तान तक सीमित है। न्यूजीलैंड अच्छा करे, इंग्लैंड अच्छा करे। मैं क्या कह रहा हूं, खिलाड़ी कोई अच्छा कर रहा है, अब उसको प्रोत्साहित करिए। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, लेकिन अगर आप किसी देश के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, दुश्मन देश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दुश्मन देश के बारे में का यशगान कर रहे हैं, तो इस प्रकार की शर्मनाक स्थिति को नहीं स्वीकार किया जाएगा। ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और कठोरतापूर्वक कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। ये हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती में इस प्रकार की अराजकता को नहीं स्वीकार करेंगे। हमने तब भी कार्रवाई की थी जब कुछ लोगों ने तालिबान का समर्थन किया था, और हम लोगों ने तब भी कहा था कि अगर तालिबान का समर्थन करोगे तो फिर इस लायक बना देंगे कि तुम जो है फिर कहीं के लायक नहीं रह पाओगे। Work is on virtually at a war footing for the construction of a grand Ram temple here at Ayodhya. Divya Bhavya Ram Mandir, as locals here call it. Now, as you have these young artists perform the Ram Leela ahead of Deepotsav, there is a lot of enthusiasm about the new Ram temple. What will it look like? India Today's news director Rahul Kanwal gets us more. मैं ये शुरू में पढ़ रहा था कि सीमेंट का इस्तेमाल ना हो। आप लोग शुरुआत में ये कोशिश कर रहे थे ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि माना ये जाता है कि सीमेंट 50-100 साल में उतना नहीं चल पाती। अब ऊपर आप लोगों ने सीमेंट लगाई थी। शुरुआत में जिस चीज़ को आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार क्योंकि यहाँ की रेत बहुत लूज थी, वो करना पड़ा। तो उससे ये मंदिर कितने साल एकदम स्टेबल ढांचा रहेगा, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं था कि सीमेंट का बिल्कुल ही इस्तेमाल ना हो। जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना था वो था स्टील। स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा, सीमेंट का न्यूनतम इस्तेमाल होगा जी। तो इसमें जो सीमेंट बनाई गई वो लगभग 20% से कम रखा गया। अच्छा। और बाकी चीज़ें जो थीं, जिसमें मैंने बताया कि फ्लाई ऐश था जिसको जोड़ा गया, उसमें अन्य केमिकल थे उन्हें लिया गया और मिट्टी ली गई। उन सब को ले करके तो हमारी जो इसकी लॉन्जेविटी थी, जो एक जीवन काल था, उसमें कोई समझौता नहीं हुआ। हम इसको 1000 वर्ष के अनुसार प्लानिंग कर रहे हैं। 1000 साल जी। और उसके लिए जो भी अनुसंधान का कार्य है
उसके लिए जो भी हमारे एंशियंट टेम्पल्स हैं, जो आज उदाहरण हैं कि 500-800 साल से वो खड़े हैं, वहाँ पर क्या क्या हुआ उनका परीक्षण किया गया। अच्छा। और उस परीक्षण के बाद जो है निर्णय लिया जाता है। वो सब तकनीकी लोग हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि एक प्रारंभ में एक चर्चा चली कि क्या हम जो पुराने ज़माने में होता था लाइमस्टोन, उसका इस्तेमाल करें। तो उसके बारे में विशेषज्ञों ने और ख़ास तौर से आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हेड्स ने सबने कहा कि देखिए लाइमस्टोन उस समय था जब कोई अन्य विकल्प नहीं था, लेकिन आज नहीं है। तो आज के लिए हम लाइमस्टोन छोड़ के हम दूसरा क्रिएट करेंगे जो उससे बेटर होगा, जो यूनिफॉर्म होगा। तो उस दृष्टि से बनाया गया और हम इंजीनियर्ड सॉइल को बहुत सफल ढंग से, शुरू में कहा गया कि यदि आप यहाँ पर करेंगे तो 1 वर्ष लगेगा, 2 मानसून सीज़न आएगा, आपके ऊपर मानसून का चैलेंज होगा। लेकिन यह एक खुशी की बात है, LNT और TCE जो हमारे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के हेड हैं, इस कार्य को उन्होंने पूरा संपन्न। और चैलेंजेस काफ़ी रहे क्योंकि कोविड भी रहा बीच में, जी हाँ, मानसून भी रहा। तो चैलेंज मतलब भगवान जी आपका पूरा एकदम टेस्ट ले रहे हैं। हाँ, पूरा टेस्ट ले रहे हैं। ये आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सही है कि इस मंदिर के बनाने में जितनी चुनौतियां आ सकती हैं वो लगभग हर कदम पे आती। As the country gears up for the Festival of Lights, that is all I have for you on this special broadcast from Ayodhya. We wish you all a very happy Deepavali. That is all I have time for on this India Today broadcast. Many thanks for watching.